Hello friends, welcome to my channel Gyan. Got your aim now. Myself सुभाष लश्करी. आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग टाइम के बारे में टोटल 23 क्वेश्चंस देखेंगे. ये क्वेश्चंस आने वाली केवीएस, एनवीएस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एग्जाम में आ सकते हैं. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं. आज का पहला सवाल है, हु इज एम्पावर्ड टू एक्सटेंड 8 days ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 days बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल. मतलब किसी एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा जो 30 दिन मिलते हैं, पर किसी कारणवश अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाता तो उसको और 8 दिन बढ़ा के दिए जा सकते हैं. तो ये 8 दिन बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारा दूसरा सवाल है, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय who got transferred to join a new post to another station where distance between the old and the new headquarters is more than 2000 kilometers, which involve continuous travel by road for more than 200 kilometers. और हमारे ऑप्शंस है 15 days, 12 days, 10 days, 20 days. तो इसका सही जवाब है 15 days, क्योंकि इसमें ट्रैवल जो है रोड से जो हो रहा है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसका कुल ट्रैवलिंग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है. इसी कारणवश उसको 15 दिन ज्वाइनिंग के लिए दिए जा सकते हैं. हमारा अगला सवाल है, विच इज ट्रू इन केस ऑफ रिकनिंग, मतलब एस्टिमेटिंग ज्वाइनिंग टाइम फॉर इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट के लिए ज्वाइनिंग टाइम एस्टिमेटेड कौन सा होता है? तो फर्स्ट है, ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंशियल पोस्ट and the post for which pay is paid during that period. Number 2, joining time is continuation of leave counts for increment in the time scale applicable to the post or post on which the last day of leave before commencement of joining time counts for increment. Number 3, journey period availed on transfer at one's own request not regularized as leave is treated as dies none and does not count for increment, leave or pension. और इसका चौथा ऑप्शन है, when an increment falls due during the period of joining time, the increased pay will be drawn only on joining duty after joining time, but the period will count for next increment. And our options are only 1 is correct, B only 1 and 2, C only 3 and 4, and D all the above. तो इसका सही जवाब है all the above. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the entitlement of joining time when an employee in transit on transfer directed to proceed to a place different from that indicated in the original transfer orders. मतलब एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया है और वो सफर में निकल गया, पर उसको बीच में मेल करके या टेलीफोनिकली नए जगहों पे ज्वाइन होने के लिए कहा जाता है. तो ऐसे वक्त में उसको ज्वाइनिंग टाइम क्या रहेगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है, फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड एंड अलाउड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग. बी, he or she will be entitled to fresh joining time in addition to the joining time already availed. C, he or she will not be entitled to fresh joining time in addition to the joining time already availed. And D, none of these. तो इसका सही जवाब है B, ऑप्शन B. He or she will be entitled to fresh joining time in addition to the joining time already availed. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not true? Options are A, holiday can be prefixed to joining time. Option B, holiday cannot be prefixed to joining time. Option C, A and B both are correct. Option D, only B is correct. तो इसका सही जवाब है
option B. Holiday cannot be prefixed to joining time. हमारा नेक्स्ट सवाल है, which of the following statement is correct in the context of a central government servant? 1. Duty includes service as a probationer or apprentice provided that such service is followed by confirmation. Number 2. Duty does not include joining time. और हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, both A and B, both A and 1 and 2 are correct. Option B, neither 1 nor 2 is correct. Option C, only 1 is correct. Option D, only 2 is correct. तो इसका सही जवाब है only 2. ऑप्शन D, only 2 is correct. मतलब duty does not include joining time. नेक्स्ट सवाल है, how long joining time is admissible to an employee who got transfer on their own request? जैसे अगर कोई खुद से रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेता है तो उसको कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है? ऑप्शन ए 12 डेज, ऑप्शन बी 20 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज एंड ऑप्शन डी नो ज्वाइनिंग टाइम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नो ज्वाइनिंग टाइम. मतलब उस एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग टाइम एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम, जो कि 30 दिन होता है, इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय who got transferred to or from northeastern region including Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh. मतलब जो हार्ड रीजन से आ रहा है, इसमें JNK का भी समावेश होता है, तो उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा कितना टाइम दिया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शंस है, ए 5 डेज, बी 2 डेज, सी 1 डे, डी 3 डेज. तो इसका सही जवाब है बी 2 डेज. उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर्ड टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and the new headquarters is 1000 km or less, which involve continuous travel by road for more than 200 km. ये सवाल 2 बार आ चुका है अभी तक. मतलब हेडक्वार्टर जो है उसका वो 1000 किलोमीटर से कम है और उसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा का रोड जर्नी है, तो उसको कितने दिन का टाइम मिलेगा? और हमारे ऑप्शंस है, ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 8 डेज एंड डी 12 डेज. तो इसका सही जवाब है डी 12 डेज. उसको 12 दिन का ही टाइम मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय who got transferred to join a new post to another station where distance between the old and the new headquarters is 1000 km and up to 2000 kilometers, means above 1000 kilometers and up to 2000 kilometers, which involve continuous travel by road for less than 200 kilometers. मतलब रोड ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर से भी कम है, तो उसको कितने दिन का टाइम मिलेगा? और हमारे ऑप्शंस है, ए 10 डेज, B 15 days, C 8 days and D 12 days. तो इसका सही जवाब है 12 days. इसको भी 12 days ही मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, as per the CCS joining time rules, joining time is not admissible to an employee when? Option A, surplus staff transferred from one post to another under the scheme regulating redeployment of surplus staff. Option B, an employee is transferred in public interest a new post either at the same or a new station. Option C, once in a calendar year while proceeding on leave from a place in a remote locality or to a place in a remote locality. Option D, twice in a calendar year while returning from leave from a place in a remote locality or to a place in a remote locality. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, twice in a calendar year while returning from leave from a place in a remote locality or to a place in a remote locality.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग टाइम मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट। ध्यान दीजिए, न्यू पोस्ट का है, टू अनदर स्टेशन where distance between the old and the new headquarter is more than 2000 kilometer and where journey is traveled by air। और हमारे ऑप्शंस है, ए 10 days, बी 15 days, सी 12 days एंड डी 20 days। तो इसका सही जवाब है 12 days, उसको 12 दिन का टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, मतलब ज्वाइनिंग टाइम के बारे में इनमें से क्या बात लागू नहीं होती। ए, dearness allowances appropriate to the pay and house rent allowances is applicable। B, joining time is regarded as duty। C, permanent traveling allowance and conveyance allowance is admissible during joining time। D, pay equal to pay drawn on old post is admissible during joining time। तो इसका सही जवाब है सी, permanent traveling allowance and conveyance allowance is admissible during joining time। Our next question is, how long joining time can be extended by the heads of department। head of the department आपका joining time कितने दिन के लिए extend कर सकता है। ऑप्शन है, ए 30 days, बी 15 days, सी 25 days, डी 20 days। इसका सवाल का जो संबंध है वो पहले सवाल से भी है, तो इसका सही आंसर है 30 days। अगर 30 days के बाद में भी किसी को टाइम चाहिए होता है तो 8 days का टाइम दिया जा सकता है, जो हमने पहले सवाल में देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and the new headquarter is above 1000 km and up to 2000 km, which involve continuous travel by road for more than 200 kilometers। तो ऑप्शंस है, ए 15 days, बी 12 days, सी 10 days एंड डी 8 days। तो इसका सही जवाब है 15 days, उसको 15 दिन का टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, joining time can be combined with A, vacation, B, leave of any kind, C, casual leave, D, only A and B। तो इसका सही जवाब है only A and B, मतलब vacation and leave of any kind, क्योंकि आप लोग जानते हैं casual leave को किसी के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the order of transfer is cancelled after the employee has handed over the charge of the old post but before taking over the charge of new post, मतलब किसी ने अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया है, उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया था, चार्ज हैंड ओवर कर दिया पर नया चार्ज लिया ही नहीं। द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट्स ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर इज ट्रीटेड एज। तो उस दौरान का जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का जो चार्ज है, अगर वो ट्रांसफर कैंसिल हो जाती है तो क्या माना जाएगा। तो ऑप्शन है, ए ड्यूटी, बी ऑन लीव, सी ज्वाइनिंग टाइम, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ज्वाइनिंग टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने वहां से सिर्फ चार्ज हैंड ओवर किया था और दूसरा चार्ज लिया नहीं था, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन और in another station which does not involve change of residence। मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह उसकी पोस्टिंग की गई है, डिपार्टमेंट सेम शहर में ही उसको दिया गया है, तो उसको क्या ज्वाइनिंग टाइम क्या मिलेगा। तो ऑप्शंस ए, नो ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल, ऑप्शन बी 2 days, ऑप्शन सी 1 day, ऑप्शन डी 3 days। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 day, उसको एक दिन का समय मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन अ टाइम स्केल। टाइम स्केल में इंक्रीमेंट के लिए इनमें से कौन सा पीरियड काउंट नहीं होता। ऑप्शन ए फॉरेन सर्विस, ऑप्शन बी एंटायर पीरियड ऑफ ड्यूटी इन द पोस्ट,
ऑप्शन सी ज्वाइनिंग टाइम एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव टेकन अदर देन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर किसी ने मेडिकल ग्राउंड्स के अलावा ईओएल ली है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव टेकन अदर देन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट टेम्पररी ट्रांसफर। अगर किसी का टेम्पररी ट्रांसफर होता है तो उसको कितना टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए? ऑप्शन ए एक्चुअल ट्रांजिट टाइम, ऑप्शन बी 8 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज एंड ऑप्शन डी 3 डेज। तो इसका सही जवाब है एक्चुअल ट्रांजिट टाइम। हाउ लॉन्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय who got transferred to join a new post to another station where distance between the old and the new headquarters is 1000 km or less, which involve continuous travel by road for less than 200 kilometers। ये सवाल ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेस देन 200 किलोमीटर्स कहा गया है और हमारे ऑप्शंस है ए 15 डेज, बी 8 डेज, सी 10 डेज एंड ऑप्शन डी 12 डेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 डेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांसफर while in transit of first transfer his joining time for second transfer is calculated। मतलब अगर किसी का ट्रांसफर पहला हो गया और वो ट्रांजिट में और उसी दौरान उसको दूसरा भी ट्रांसफर हो गया तो उसका कौन सा टाइम कैलकुलेट किया जाएगा? तो ऑप्शन ए फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड एंड अलाउड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ऑप्शन बी no fresh joining time is admissible, option C fresh joining time is calculated from the place at which employee got revised order to the new place of posting and option D none of these। तो इसका सही जवाब है none of these। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, how long time joining time is admissible to an employee who got transferred to join a new post to another station where distance between the old and the new headquarters is more than 2000 km, which involve continuous travel by road for less than 200 kilometers। And the options are option A 20 days, option B 10 days, option C 15 days and option D 12 days। तो इसका सही जवाब है 15 days। Thank you. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.